most of the cafes in Jaipur have failed. जयपुर में क्या कौन सा कल्चर ज्यादा है, कॉफी कल्चर या चाय कल्चर? Some places in Jaipur that's a very good dessert or cakes. So tell us about all of those things. Which was the first cafe that you helped open up or set up a Are you guys twins? ना मैं छोटी हूँ. Cafe culture in Jaipur. Yes, he is the one who started cafe culture. I didn't like the coffee. Last year we could donate. No, so first we. आप ये मानते हो कि जब कोई खाना बना रहा होता है तो फूड का बड़ा फर्क पड़ता है? I am the hyper one for sure. नूडल्स और मैगी के साथ दही खाते हुए Seriously, देखा है. and we felt so cheated because we had to pay for that crap. One ingredient that you can never get bored of. What would it be? Margarita. Pink sauce pasta उतना ही pink है जितना हमारी pink city pink है. We are females. We are bound to fight, argue, hormonal. We've been blessed कि हम चीजों से बोर हो जाते हैं. We move on. Say the OG जयपुर ट्रेडिशनल खाना पुराने शहर का. Have had Golgappas there. पापा मम्मी ने डेट मारी है उनके यहाँ. The new coffee shops which have come up are like wow. So they made Khichdi map of Khichdi map India of based India. on our book. Well, that's the लिखा हुआ है only नीचे. map Really? which has the names. Credits हैं उसमें. Credits. मुझे ऐसा लगता है जिस दिन मैं कुछ अच्छा खा लेती हूँ ना मेरा दिन is best. Yamini देखा see yummy and Damini makes you Yamini. And food, of course. How can you forget food? The Damini is here. Hi guys and welcome back to the third episode and another episode of Keep Punching with Damini, जहाँ पर हम लोग जयपुर के फूड कल्चर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, अलग अलग कैफेज में जाके वहाँ का खाना ट्राई करते हैं with some fun conversations with our guests. एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं जब जयपुर आई थी तब मैंने यहाँ आकर ये चीज़ जानी थी कि जयपुर फूड कल्चर इज़ ग्रोइंग रैपिडली एंड वेरी फास्टली. और दो बहुत ही अलग साइड्स हैं जयपुर के. एक पूरा ट्रेडिशनल खाना है और एक वो जहाँ पर कैफ़े कल्चर धीरे धीरे जयपुर में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है. सो यस, जयपुर का जो फूड कल्चर है वो सिर्फ दाल बाटी और कचौरी तक लिमिटेड नहीं है. एंड इस चीज़ का क्रेडिट बहुत सारे ऐसे लोगों को जाता है जो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं टू ब्रिंग बाहर का फूड कल्चर इनटू जयपुर. और आज के जो हमारे गेस्ट्स हैं वो ऐसी ही दो स्ट्रॉन्ग फीमेल्स हैं जिन्होंने भैया फूड कल्चर और culinary cuisine में अपना कमाल दिखाया है. दे आर वेरी फेमसली नोन एज द कॉलरॉन सिस्टर्स. एंड जब मैं जयपुर आई थी आई थिंक द फर्स्ट पीपल that I got in touch in the food community were these two people and they really made me feel at home. So आज का एपिसोड बहुत स्पेशल भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि मुझे लगता है हम लोग बैठ के बहुत सारी खाने पे गॉसिप्स करने वाले हैं. So please welcome my today's guests, the Calderon sisters, Ratika and Richa. Woohoo! Thank you so much. Hello! And we were so looking forward to this wonderful eating and talking great. session. Thank you so much and we've been planning it for a very long time. बहुत सारी dates cancel होते होते finally we are here. Good things take time. Good things take time. I think and this is going to be very good and great. So हम full gossip करने वाले आज हम. अरे gossips are always welcome. Teen female तीसरा episode. Let's kill it. So yes, चलते हैं अंदर. And today's episode we are shooting at the Cafe Dos Amigos Taqueria Sea Scheme. चलें? Alright, so we are here at Dos Amigos Taqueria and मेरे साथ है the Calderon sisters, Ratika and Richa. So मेरे को जो सबसे first memory याद है आप लोगों की वो यही है that you were organizing a sisters table at Sirka and I was invited. और पहली बार मैं जब आई थी मुझे उससे लगा था कि wow, this is what food community looks like. Thank you so much. और वहाँ पे we were eating mushroom pot नहीं. Many things. They No. served such amazing. We were eating something जिसमें क्या कहते हैं अपन उसे garlic pots pot. they some. हाँ. Not we were not eating. The non-veg eaters were having something which had whole garlic pods in it, Yeah. which was quite fascinating. हाँ. You know, jungly mass or something like that. Yes, but उसका vegetarian भी था because I got a pot in my. Maybe Yeah. because we served a thali over Yeah. there,
तो उसमें आई थिंक आलू प्याज की सब्जी जो होती है हाँ। इट हैड गार्लिक पॉट गार्लिक पॉड Yeah. उसमें था एंड यू टोल्ड मी कि ये जिसके पास निकलता है वो बड़ा लकी होता है ना या वन कुछ ऑफ ऐसा आवर होता है? पार्टिसिपेंट शी सेड दैट मैंने कहा ओके फाइन क्योंकि उसकी अकेली कटोरी में दो आई वुड से कि इट्स अनलकी हाँ। भाई गार्लिक कितना खाओगे आप द मेन थिंग्स वर मिसिंग पर मैं उस दिन से ही सोचती हूँ कि वो बहुत लकी था सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे ऐसा लगा कि मैं कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस हुई हूँ एंड थैंक्स टू यू गाइस यू मेड मी तब से लेके अब तक you guys have always made me feel like home serving kachoris we keep always expecting you know it's the kachoris. feeling that reciprocates Yeah. because you felt like family So and it was both we ways. welcome family anyway. थैंक यू सो मच एंड सबसे पहले ये फर्स्ट चीज यही है जो मैंने आपसे पहले भी पूछी थी कि व्हाई द नेम कॉलरॉन सिस्टर्स एंड हु केम अप विद इट एंड हाउ both sometimes we both think on same lines so we are so-called cartoon pagloos and We love cartoons. yeah so our childhood was full of Tom and Jerry, Mickey Mouse, Macbeth, all these उस टाइम भी ये डेली यही सोप सब और ना चलते वो थे, Noddy, डोरेमोन वगैरह नहीं Oswald. Imagine Tom and Jerry and Macbeth coming in the Oswald same was line. next generation Yeah, kind 2 decades later. so we were always curious about those witches, magic pots, and we consider that when we cook, we create magic. या So 100% Still give us a chance and you'll find us watching I Dream of Genie, Oh, yes. Bewitched. Bewitched के सारे सीजन्स मैंने ये Amazon US लेकर के $2 में खरीद के सारे देख डाले. वाओ मतलब मैं खुद मैंने एक दो जनों से जब आप लोगों के बारे में बात की है ना तो मुझसे कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब दैट लाइक फ्लेवर मैजिशियंस Oh, thank you so so sweet. much. flavor magicians bringing flavor on a table in food and vibe में Thank you so much for Richa Mission that accomplished. was We're done. beautifully We did put. good. थैंक यू एंड हु केम अप मतलब किसने सोचा था ये नाम सब कुछ कौन साथ में आता है क्या आता है Both of पता us. नहीं हम भूल अच्छा जाते लोगों को ना एक सवाल और रहता है आर यू एज ट्विंस हैं ना मैं छोटी हूँ. Look, झूठ नहीं बोलना चाहिए इतना. So yes, I am the elder one and she's 5 years younger. She is the elder one, guys, not me. She's 5 years younger one. You know, younger sibling is always one the troublemaker. I keep things entertained. एंटरटेन एंड एंथुसियास्टिक Yes. चलो अच्छा कौन है दोनों में से जिसको लगता है कि यार शी नीड्स अ पुश एंड आई नीड टू पुश हर टाइम पे चेंज होता रहता है. Some days I am the hyper one for sure. Yes. But when I cannot move around much, then she pushes me. So it's equal balance. करेक्ट And there are few days when we both are dull, then we Yeah. don't talk to each other. We don't talk to each other. Otherwise, we'll end up fighting. ऐसा ऐसा होता है कि हाँ। बहुत बार कि भाई सैचुरेशन आ गया थोड़े दिन बात नहीं करेंगे नहीं, we are नहीं, थोड़े females. minute. दिन नहीं, थोड़े minute. हाँ. We are females. We are bound to fight, argue, hormonal. And we are sisters. We are bound not to separate, and we are okay with it. दैट्स ग्रेट बट अब तक की यू नो आप लोग कैफे कंसल्टेशंस भी करते हो मेन्यूज भी क्यूरेट करते हो होम कुकिंग होम बेकिंग क्लासेस बना सो मच आई एम टेलिंग यू व्हेन आई विजिटेड योर वेबसाइट आई वाज लाइक कि मैं कुछ आर्टिकल्स पढूं आपके बारे में पर आई वाज लाइक ये लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही है एन नंबर ऑफ आर्टिकल्स देयर आर बहुत छोटी लाइफ है बहुत कुछ करना है सो वी आर ट्राइंग आवर हैंड्स ऑन मेनी 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 थिंग्स बहुत And कुछ we've been blessed कि हम चीज़ों से बोर हो जाते हैं. वी मूव ऑन Yeah, we move on and we look for new things to start and we want to educate people. कि आप सिर्फ खाओ मत, आप उसके बारे में जानो. या तो अपनी शुरुआत से जर्नी के बारे में थोड़ा बताओ कि हाउ डिड यू गाइस स्टार्ट व्हेन डिड यू स्टार्ट व्हाट ऑल यू Overnight. डन अभी तक overnight we started we have done maximum things we have done overnight so we were always see we are marwadis we are agarwals we are bound money making हमारे खून में है अब कुछ काम मतलब कुछ we've kept from trying and one day sitting at home my son was 1.5 and she comes up with thing कि किसी के लिए कुछ बनाना है अपन बनाएंगे मैं कैसे बनाएंगे बेटा इतना छोटा है she said अपन बनाएंगे and she told me अपन बनाएंगे then we worked on something and within 24 hours we delivered what was required and that was super fun and वहाँ से हमारी marketing skills चालू हुई तो जो लेफ्ट ओवर सामान था उससे हमने लोगों को गिफ्ट्स भेजने चालू करे कि ये हमने काम चालू किया है तो क्या था वो सबसे पहला ऑर्डर जो आपने बनाया था The jar किसी और- cakes. So we introduced jar cakes in Jaipur. Oh. so we donned the cap of introducing many things to Jaipur which Jaipur is very proud seller these days like we are the ones who started jar cakes we are the ones who started flavored ghevers in India
Nobody had a thought of having flavored gavers until we started. मैंने स्पेशली ये क्वेश्चन भी रखा है क्योंकि हमारे लिए आई थिंक वी आर ऑल फूडीज, तो हमारे लिए फूड इज एन इमोशन. Exactly. फूड कैरीज सो मच इमोशन. तो आप ये मानते हो कि जब कोई खाना बना रहा होता है तो मूड का बड़ा फर्क पड़ता है खाने पे? बहुत बहुत फर्क पड़ता Will है. you believe it? हमें 10 साल हो गए हैं काम करते हुए. घर का खाना फिर भी कभी हमने कह दिया स्टाफ को कि तुम बना दो. क्लाइंट का कोई भी खाना हम दोनों के हाथों से ही बना है. Not a single day we've asked our staff to cook. Nobody's Because paying we for have our trust staff to issues, food. you know, Yeah, and we have. don't trust anyone except for ourselves. तो घर का खाना ठीक है, कभी बोल दिया स्टाफ को बनाने, हाँ. पर if it's an order food, रिचा और मैं ही बनाएंगे, nobody else. मैंने बहुत बार ये नोटिस किया है एंड इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि यू नो खाने के भी इमोशंस होते होते हैं हैं. और खाना खा के आप बता सकते हो कि इफ इट इज मेड विद गुड मूड और नॉट. Why घर पे is नहीं it बताते थे. that when a family member cooks food for you, Yeah. it tastes wonderful? वंडरफुल. But माँ if के हाथ का it's खाना. from a restaurant या Yeah. फिर झुंझुल खाया हुआ कोई बना रहा है, स्टाफ क्योंकि मोस्टली झुंझुल खाया हुआ ही रहता है, तो अगर वो बना रहा है तो उसमें वो अच्छी ना आपको अच्छा फील नहीं होता. इट डजंट गिव यू अ हैप्पी फीलिंग. प्लस फूड कैन बी हीलिंग आल्सो. Like we were talking about sourdough breads. Yeah. One of our clients, he used to order sourdough breads. So he told us कि उनके बेटे को gluten allergy थी, जो sourdough bread खाने से ठीक हो गई. Oh. Imagine you are having 100% gluten and वो ठीक हो गया. वाओ. So And you won't believe जयपुर ने हमको इतना प्यार दिया है ना. The way people have given us so trusting us with say lockdown से पहले भी हमने food catering बंद कर दी थी. हाँ. But you know, people have trusted us so much. Lockdown में we used to get orders for expecting females. मतलब आज एक प्रेग्नेंट फीमेल को लॉकडाउन के टाइम पे व्हेन एवरीबडी स्केयर्ड ऑफ एवरीथिंग, आप फटाफट कॉल से कॉल कर रहे हो कि हमें जलेबी खानी है, हमें गोलगप्पे खाने हैं, हमें ये केक चाहिए, एंड वी डोंट ट्रस्ट एनीवन एक्सेप्ट फॉर यू. फुल ऑन काम किया हमने लॉकडाउन में क्योंकि इतना प्यार मिलता था लोगों से कि दे फील अभी भी लाइक वी शट डाउन बट वी गेट कॉल्स फ्रॉम पीपल कि वी मिस योर फूड सो मच. सो वी आर ब्लेस्ड दैट वे. आई नो बिकॉज मैंने आपकी वो कचौरी खाई थी एक कड़ी बार. आपने कड़ी जो कचौरी. नहीं वो Coin छोटी कचौरी, वाली coin जो कचौरी. कॉइन कचौरीज जो है हमारा वो मुझे- कचौरी आदान प्रदान चलता है, ये कोटा से लाती हैं, हम इनको यहाँ से खिलाते हैं. एंड मैंने मुझे बहुत अच्छे से याद है वो एक पैकेट मैंने ऑफिस में सबको खिलाया था एंड एवरीबडी हैड ऑर्डर्स फॉर मी कि यार प्लीज मेरे लिए ये 1 किलो मंगाना है मंगाना. मैंने बात भी की थी बट उस टाइम पे कहता कि बाद में हम जब नेक्स्ट बैच बनाएंगे Yeah. तो विल गेट इट. सो यस दोस कचौरीज वर अमेजिंग. एंड मैं अगर ये बोल रही हूँ तो एक्चुअली बड़ी बात है क्योंकि मैं कोटा कचौरी के कोटा से हो अलावा भैया, बिल्कुल लेजिटेबल. That reminds me कि कचौरी कोटा कचौरी खाए हुए बहुत टाइम हो गया. अभी आएगी 2 दिन में आएगी देखो आप. कोटा जाना नहीं हुआ है इतने टाइम से तो जैसे ही जाएंगे कचौरी का पैकेट 100% आएगा. सो अभी तो ऑफ कोर्स जयपुर का फूड कल्चर इज ग्रोइंग एंड वी आर हैविंग वेरी डिफरेंट कुजीन्स. बट बचपन में जब आप लोग बड़े हो रहे थे तो क्या आप लोग के फेवरेट स्पॉट्स थे? द ओजी जयपुर ट्रेडिशनल खाना पुराने शहर का. व्हाट वर योर फॉन्ड मेमोरीज ऑफ फूड? शहर में आज भी है वो गोलगप्पे की दुकान लक्ष्मी चाट भंडार Oh, इन yes. बापू बाजार. प्री इंडिपेंडेंस से खुली हुई है, पाकिस्तान से आए थे वो अंकल, उन्होंने खोली है. और जो आदमी उनके यहाँ काम करता था वो भी शायद अभी रिटायर हुआ है 1-2 महीने पहले, Oh, पर वो अपने भतीजे को लगा गया वहाँ पे. हाँ. यू नो दैट्स द फील. वैसे गोलगप्पे आज भी नहीं मिलते. Our parents used to go for date वहाँ पे. So our nannies have had golgappas there. पापा मम्मी ने डेट मारी है उनके यहाँ. मैंने राहुल ने मेरा हस्बैंड हमने खाए हैं, हमारा तो फेवरेट है ही है. इनकी डेटिंग फेज में तो मैं आती थी सारा हर जगह पे मैं Let's जाती not थी. come there, please. राहुल माय हस्बैंड, हाँ. उनकी मम्मी ने भी वहाँ गोलगप्पे खाए. इनफैक्ट बिफोर डिलीवरिंग किड्स शी यूज्ड टू गो देयर, ईट गोलगप्पा एंड देन गो टू द हॉस्पिटल. सो यस, दैट गोलगप्पा लक्ष्मी चाट भंडार. Yes, it's still iconic. Yeah. Then we were in Tilak Nagar, Raja Park was a So major वहाँ पे Punjabi AC area. मार्केट के सामने मिलता था पाव भाजी एंड तवा पुलाव. The bestest pav bhaji, trust me, कोई श्री राम था उस टाइम. He used to be in that area. वैसी actually we used to go to Bombay a lot. तो बॉम्बे दिल्ली हमारा रहता था जाना, तो टेस्ट बड्स पहले से ही एनहांस थे. क्या पाव भाजी होती थी उसकी, आप कभी भी चले जाओ. And then emerged Milky Way, Yes, Milky Way. Oh my God. the only place who was They giving used pizzas. they started this soft serve vanilla ice cream with Oh. red ruby red jelly. Wow. एंड उस टाइम ये हो गया था कि घर में जितनी भी पार्टीज होंगी डिजर्ट वहाँ से आएगा, वो आइसक्रीम ही खाएंगे. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज आई हेट जेली. But that is the only place giving burgers and pizzas, and which was nothing like आज का burger and pizza. I still miss that burger. वो तवे पे आई सेका लाइक हुआ दबा द दबा के. पिज्जा. एक अजीब सा उसकी चीज, मतलब ऐसी मोटी सी लेयर गंदी सी,
गंदी सी स्टिल अच्छी लगती है। लगती थी उस टाइम पे, अच्छी लगती थी क्योंकि सब अभी भी नया वी नया क्रेव था। फॉर दैट टेस्ट। That taste. वी हैवंट हैड सिंस इयर्स, बट कई बार लगता है कि यार वही वाला पिज्जा चाहिए। so we are on same I started having curd with every damn thing because it used to be so So spicy. spicy. Yeah, one of my nephew used to have अभी भी उसको पसंद नूडल्स के साथ दही ये तो हाँ। ये तो ज्यादा हो गया। है, मैंने बहुत सारे लोगों को नूडल्स और मैगी के साथ दही खाते हुए देखा Seriously? है। यस, मैंने Normal है। ट्राई टू गेट सम। never never मैंने never ट्राई करा है, कैसा था अच्छा था। अच्छा था, Good one. मैं क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम लाइक दही मैगी के साथ कौन खाता है। मैं एक बार को तुम सॉस बोलोगे समझ आता है, पर दही। सॉस। सॉस बोलोगे समझ आता है So मेरे को एक बात बताओ, आप लोगों ने बहुत कुछ किया, you know, you have helped Jaipur cafes open up, their menus curate किए हैं, some global flavors को देसी touch देके आप लोग यहाँ लेके आए। So tell us about all of those things की which was the first cafe that you helped open up or set up a menu. There were many. We started from as मैंने जैसे अपन डिस्कस किया, बहुत चीज़ें प्लानिंग पर नहीं होती. So first काफ़ी थे, but we really liked when दूध मिष्ठान भंडार approached us, and they didn't have any agenda. Such a पुराना establishment with desi people working. Their idea was, आप ये मान लीजिए कि उनके लिए मेन्यू से ज़्यादा इट वॉज अ टीम एक्टिविटी, कि आप कोई भी 20 डिश आप देख लो हमारा मेन्यू क्या है, आप क्या इवॉल्व करा सकते हो इनको. ही वॉन्टेड हिज टीम टू फील समथिंग डिफरेंट, कि बाहर से कोई आया है या आर ओनर इज ट्राइंग टू अपग्रेड अस. Upgrade us. सो स्टार्टिंग में इट वॉज अ पेन टू अब हलवाई हैं बेसिक बिल्कुल, बट दे हैव टैलेंट, दे हैव इमेंस नॉलेज, पर ये लड़कियाँ आ गई क्या सिखाएंगी. सो फर्स्ट वी हैड टू पैम्पर देयर कुकरी. बड़ा क्यूट सा वड़ा पाव बनाया था, उसमें उनके हाथ में जो कुछ था उन्होंने सब मतलब डाला इमेजिन था. बॉम्बे नहीं डीएमबी, वहाँ पे वो अपना पूरा फूड काउंटर्स जो होते हैं वो लगा हुआ है, उनके हाथ में जो चीज़ आई एक एक करके ना, ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, ये भी डाल दो, मतलब वो वड़े डाल के दो। नाम पे तो मिर्ची बड़ा वाला मसाला था. हाँ, एंड जो दिखा चटनी मेयो शेजवान और मसाले और भुजिया और जो दिखा सब कुछ मिला के मीठी चटनी, खट्टी चटनी, दही भी डालने की इच्छा थी उसकी। वी हैड फन. फिर आपने क्या और इवॉल्व किया? हमने उनके उनको menus सिखाया था, में? फलाफल्स वगैरह सिखाए थे, लेबनीज सिखाया था, एंड वी टॉट देम लॉट ऑफ थिंग्स. उनके लिए रेसिपीज भी हिंदी में लिखी थी हमने, सारी रेसिपीज सो दैट दे कैन फॉलो लेटर ऑन. सो आई डोंट नो मेन्यू में है या नहीं है, बट इट वाज वेरी नाइस. नो, आई थिंक दे हैव, क्योंकि उन्होंने अभी नया 4-5 साल पहले जो नया खोला था उसमें इट इज द डिमांड. It is the आजकल demand. लोगों को वो टिपिकल सब वो सब चाहिए. हर जगह मिल रहा है. सैलेड्स न्यू जनरेशन नीड समथिंग फोटोजेनिक. Yes. This we taught their service staff also कि how to keep guests engaged, what is hospitality, you need to give little extra, and हमेशा ऑब्जर्व करो कि इस टेबल पे 2-3 बच्चे हैं, 2-3 बड़े हैं, 2-3 बुजुर्ग हैं, तो कौन फोटो खींचेगा उसके लिए. a menu should have photogenic stuff and the syllable stuff both. करेक्ट. सो दैट अगेन जैसे जैसे आप चीज़ें बोल रहे हो मुझे मेरे सारे सवाल याद आ गए जो मैंने एकदम सोचे थे कि हाँ इस बारे में तो बात करनी है. तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट जयपुर का फूड कल्चर जो इवॉल्व हुआ है. अगर हम पिछले देखें आई थिंक 10-15 सालों में ही ट्रेडिशनल फूड से एकदम हाई फाई एवरी कुजीन इज देयर इन जयपुर. सो वो क्या क्या कितना इवॉल्व हुआ है एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, कि और कौन कौन से कुजीन्स हैं जो आपने ट्राई किए हैं, लोगों को नहीं पता है कि जयपुर में ये सब भी मिलता है. So like we are sitting in a Mexican restaurant. Yeah. So how it has evolved for us. Our first introduction in Jaipur for Mexican restaurant was through a relative, and she was going gaga over it कि अरे वहाँ का Mexican खाना GT के सामने कहीं पर. That's बहुत maybe ही 20 अच्छा है, years बहुत ही back, अच्छा है. 20 हाँ, years back. amazing We already है. had a palate for cuisine because we used to travel to Bombay a lot. Yeah, and she was going gaga over it. So we were like यार Mexican जयपुर में मिल रहा है, अपने को पता नहीं, चलो we'll try. So she specifically mentioned that do have a burrito वहाँ पे. So we went inside, place was average, we ordered a burrito. अपना तेल में सिका हुआ पराठा मोटा सारा, उसके ऊपर 3 जीरा आलू इतने बड़े बड़े ये रख के आया था. हाँ, केचप के साथ. And he was और like roll ये था. burrito है. और उस टाइम देखो we were also kids, so हाँ. it's not easy to bash a restaurant. करेक्ट, ऑफ कोर्स. And we felt so cheated क्योंकि we had to pay for that crap. And it was like disheartening कि जयपुर में नहीं मिलता अच्छा खाना. तो हम लोग we used to travel a lot to काठमांडू, वहाँ बुआ रहती थी, बॉम्बे, दिल्ली. So वहाँ जाके when you And see we stuff, are fond of trying new things. So that's why we want
जैसे हम हमारे काम से भी सेम चीज़ें जो चल रही होती है उससे थोड़ा सा ना वी ट्राई टू ब्रिंग समथिंग न्यू, वैसे विद आवर फूड वी ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद समथिंग न्यू. वी स्टिल इम्प्रोवाइज आवर रेसिपीज. मतलब अंदर ना वो एक वैक्यूम सा हो जाता है कि यार वही 3 साल same से old यही दाल चीज़ें। खा रहे हैं, इसको इस तरह से छौंकते हैं. ये सेम ऐसे छोले चलता अगर है। 3 बार बनाए तो चौथी बार इनको ऐसा होता है कि मैं छोले को हाँ, अलग आई कैसे मेक एटलीस्ट अब 15 हो गई हैं. आई मेक एटलीस्ट 15 रेसिपीज ऑफ छोला. बनाओ कभी. एक साथ 15 है ना. You guys have also written a book on khichdi, which has some very 65. 65 plus recipes. 65 खिचड़ी recipes है. So ये खिचड़ी पे किताब लिखने का आइडिया कैसे? How did that came? So khichdi came to us by our teacher, our guru. He was having a school project. तो उन्होंने कहा कि तुम एक किताब लिख दो खिचड़ी पर. सर ने कह दिया तो लिख देंगे. ओके सर. नेक्स्ट डे कहते हैं 51 रेसिपीज लिख सकते हो. सो व्हाट वी सर्च वाज खिचड़ी. जब हमने गूगल करी तो इंडिया के हर स्टेट की खिचड़ी अलग recipe है. खिचड़ी है. तो वो कुछ 37 के आसपास बैठ रही थी, जिसमें नॉनवेज भी बहुत थी. 51 करनी थी. Correct. इमेजिन एंड जस्ट बिलीव, ट्राई टू बिलीव कि ऐसे फोटोशूट हो रहा था खिचड़ियों का. अच्छा दाल मखनी बनी है, चल कुछ मिला करके दाल मखनी खिचड़ी लिख, इसकी रेसिपी लिखनी है. फ़ोटो खिंच गई है, रेसिपी हो जाएगी. पनीर रखा है घर में, ओके पनीर लबाबदार खिचड़ी बनेगी. सो वी इम्प्रोवाइज फ्यू रेसिपीज़. थोड़ा रिजोटो टाइप खिचड़ी बनाया और कुछ हमने 51 रेसिपीज़ पूरी कर दी. एंड द बुक वॉज फैबुलसली लॉन्च्ड एट सिटी पैलेस. एंड उसके बाद में That time we did not realize that एक book launch होना is such a big deal for you. Yeah. And और book we were लिखना है. pretty Sure. casual about it. But जब हमने लोगों का response देखा, यार ये तो बड़ा अच्छा काम कर लिया. because that was the first time 13 principals came together on a stage to launch our book along with royal family. Wow. So it was actually wow moment. And खिचड़ी हमने of course that was a free fund का काम, क्योंकि it was हमने out of goodwill लिखी थी. And फिर लग गया lockdown. And we are Insta friendly people. We keep in touch with many people. Then someone suggested, why don't you revamp your book? तो लॉकडाउन में हमने बैठ करके सारी रेसिपीज़ को रीडू किया, एक एडिटर लिया, एक अच्छे से किताबों. एंड देन वी फेल्ट सो ग्रेटफुल कि हमने इसको चैरिटी प्रोजेक्ट बना दिया फॉर लाइफ. तो हमें बहुत बड़े बड़े शेफ्स लाइक शेफ़ विक्की रत्तानी, शेफ़ आशीष भसीन, इन सब ने अपनी अपनी रेसिपीज़ कंट्रीब्यूट करी Wow. उस बुक में. तो हमने इसको चैरिटी प्रोजेक्ट बना दिया कि इसकी सेल का सारा अमाउंट वी विल डोनेट लाइफ लॉन्ग. एंड द बुक वॉज लॉन्च्ड इन मुंबई बाय विक्की रत्तानी. No fees paid, out of gratitude he did that for us. We are always will be grateful to him. And then जब Plus जब all हमने those people that we used to see on TV or Instagram, when you come face to face and you realize, मतलब How you are humble they are. completely conscious कि नहीं यार इनके पास तो टाइम ही नहीं होगा, हाँ. आएंगे फटाफट we'll launch the book and then they'll rush out. मुझे बैठना है, गोलगप्पे खाने दे. विक्की रत्तानी पूरा feeling मैं भर के गोलगप्पा देता and serving me. So वेरी it was वेरी nice. वेरी बिग फैन. मतलब बचपन में दो जो मेरे को शोज काफी पसंद है. ऑफ कोर्स एक तो खाना खाना खजाना. खजाना. खाना खजाना आई थिंक एवरीबॉडी हैज वॉच्ड इट. एंड सेकेंडली डिज्नी चैनल पे एक आता था पेट पूजा करके. हाँ, सो मैं जब थोड़ा बहुत स्कूल याद है. से भी आती थी तो स्कूल से आके एग्जाम देके अगर आए 11-12 बजे बैठे तो पेट पूजा चल रहा होगा और मैं कुछ खाते खाते वो देख रही Chinu, Chef Chinu used to host that. आई डोंट रिमेम्बर द नेम. नहीं, आई Chinu रिमेम्बर was द फेस. quite recent. Okay. हाँ. I'm talking about back in 2009-10. That is recent. That is recent. That's why I asked. And will you believe that खिचड़ी को हमने चैरिटी प्रोजेक्ट बनाया. तो हमने क्या किया, हम 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर इज जॉय ऑफ गिविंग वीक हाँ. फॉर नेशनवाइड. तो हमने क्या किया, खिचड़ी बांटनी शुरू कर दी. उसको देख करके लोग हमें अप्रोच करने लगे कि वी ऑल्सो वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस गिव अवे. Yeah. तो And लोग we decided कि एक सिर्फ humans को खिलाने का ही कुछ नहीं होना चाहिए. Like we feed dogs also, cats. Cats तो नहीं खाएगी वैसे. Cats are very moody. I love cats. Dogs is a I cat know, person. but they are moody. तो हम जोमेटो डिलीवरी बॉयज को देते हैं, हम ये सड़क पे लोगों को बांटते गायें जो हैं. होती है उनको हाँ. तो हर किसी के लिए उसके स्टाइल खिचड़ी बनती है. जैसे गाय की बिना नमक की बनती है, लेप्रेसी पेशेंट्स की मसूर दाल से बनती है. तो 7 दिन हम खिचड़ी बांटते हैं. 4-5 साल हो गए हैं करते करते. लास्ट ईयर वी कुड No, डोनेट. so first we started with I think 10 या 15 kgs. खुद बनाते हैं, खुद ही जाते हाँ. थे देने के लिए. First year it was Then just people 10 started kgs. helping us. Yeah. And then last year we donated around 1000 kgs.
हाँ. 1000 kgs of khichdi. Yes, Wow. with all the community help. Yeah. So people send us raw material. They take khichdi from us to Yeah, distribute. yeah. Robin Hood Army helps us in distributing the खिचड़ी project में I think I had also sent. Yes, तुमने ये भेजा था. हाँ, मैंने भी घी भेजा था कि खाने से रिलेटेड कुछ भी होता है ना तो मेरे को वैसा लगता है कि यार आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट. कैसे हो सकती हूँ पता नहीं बट लेट्स डू इट. तो हमें ना बांटने वाले चाहिए. हाँ. खिचड़ी हम बना लेते हैं. हाँ. रॉ मटेरियल बहुत, क्योंकि 1000 किलो बांटने के बाद भी हमको रॉ मटेरियल डोनेट करना पड़ा आश्रम में कि और कितनी बांटे. एंड खिचड़ी प्रोजेक्ट गेव अस बेटर इंडिया के मैप्स देखे हैं आपने. बिल्कुल. So they made Khichdi map of Khichdi map India of based India. on our book. Well, that's the लिखा हुआ है only map Really? which has the names. Credits हैं उसमें. Credits. I have not watched the credits but I have that map saved. नीचे zoom करके देखना है. Oh Yes. wow. Juggernaut London has covered, Gulf News has covered, Curly and we haven't Tales, paid for it. Viral Bihani, they have covered this Khichdi book. Oh wow. And nothing paid for it ever. So जयपुर में first of the cafes का memory आपका कौन सा है? कि आजकल तो there are n number of places to eat. So okay, बचपन में तो we won't say cafe was just a term cafe. हाँ. पर वो cafe होते थे किरण cafe. हाँ. वहाँ पे there was nothing like cafe. It was normal multi cuisine restaurant. So the first cafe that started in Jaipur was OTH. OTH. Yes. Yeah, Dushyant they Singh. got Cafe cafe culture. culture in Jaipur. Oh. Yes, wow. he is the one who started cafe culture. हाँ. उसके बाद तो अब सभी चालू हो गए. अब तो सभी चालू हो गए. So अभी इतना सारा cafe culture is growing day by day and मुझे ऐसा लगता है कि हाँ cafes open up भी हो रहे हैं but बहुत सारे हैं जो नहीं चल भी नहीं रहे हैं, बंद भी नहीं हो रहे हैं. So it's a trap. People हाँ. think कि सामने वाले का कैफे अच्छा चल रहा है तो हाँ. क्या है डेकोरेट करना है, Correct. फोटोजेनिक प्लेस होनी चाहिए, कॉफी. जयपुर has gone crazy for coffee. Yeah. So कॉफी रख लेंगे एंड बस हमारा भी चल जाएगा. जयपुर में क्या कौन सा कल्चर ज्यादा है, कॉफी कल्चर या चाय कल्चर? दोनों है, दोनों का अपना मार्केट है. क्योंकि मैंने बहुत सारे कॉफी प्लेसेस देखे हैं पर मैंने बहुत सारे चाय प्लेसेस भी देखे तो हैं. दोनों का सेगमेंट ही अलग है. हाँ. चाय वालों का एक मीडियोकर लुकिंग कैफे भी सुपर हिट जाता है. पर चाय अच्छी चाहिए. हाँ, चाय अच्छी होनी चाहिए. फिर वो मुड्डों पे भी चलेगी, चटाई पे भी चलेगी. चाय चाय कब से भी इज चलेगी. मोर ऑफ अ फैमिली थिंग. क्या आप अपने पेरेंट्स के साथ भी जाते हो, सीनियर सिटीजन्स दे एंजॉय इट हाँ. मोर एंड कैफेज कॉफी इज Coffees. मोर ऑफ अ जेंजी एंड फ्रेंड्स Hangout. वाला थिंग. यार हम भी सिर्फ कॉफी के लिए जाते हैं. वोंट से जेंजी बट इट्स लाइक पीपल हु लेकिन रियली अपने लव आसपास कॉफी. में जो देखते हैं हाँ, so मतलब mostly young group of friends sitting and chilling. बट Can you कॉफी tell- में भी यू हैव द 3 सेगमेंट्स ना. द हाई एंड, हाई एंड. द बीच वाला जिसमें सारे ये बच्चे जाते हैं, 50 रुपए में कॉफी मिल जाती है टाइप. हाँ. नहीं, 150 वाली कॉफी. फिर 50 रुपए वाली भी आती हाँ. है जो ठेलों पे मिल Premix जाती वाली. है. प्रीमिक्स वाली. ओके. फ्रेश. Yes. So the best part about this place is कि these are all in-house made dips That's and the main- in-house made nachos. दैट्स व्हाट कीप यू डिफरेंट. Everything is हमारे लिए सबसे बड़ा टर्न ऑफ होता है पैकेट वाले नाचोस. वो होता है और वो जिन लोगों को फूड का नॉलेज होता है वो जाकर के खा के बता सकता है कि ये बने वरना हुए हैं. देयर इज अ Knowledge is a सेगमेंट curse. जिनको वो पसंद है. Sometimes पसंद है. both. खाता ही है तने डोरिटोस. ना डोरिटोस विद अ ड्रिंक बहुत अच्छा लगता है. कभी नहीं सकते क्योंकि वो नाचोस एंड ऑफ द डे यू आर नाचो, यू हैव टू बी नाइस. नहीं सही है. प्लीज प्लीज जॉइन अस. शुरू कीजिए, टेस्ट कीजिए. आइए. Yes. So please Anjanay tell us about how you came up with Dos Amigos. यहाँ पर क्या क्या मिलता है लोगों को ट्राई करना चाहिए and what all are we going to eat today? So yeah, so we're at Dos Amigos Taqueria today, as you said. So Taqueria is basically a place that makes tacos, specializes in tacos, just like a pizzeria. And we are proud that we are the Jaipur's first authentic taqueria. And the little story behind it is that I used to work in Mexico Oh, amazing. as a chef and in the hospitality business. 6 years in New York, 2 years in Mexico. But I'm from Jaipur. My family is here, so when I came back, I always wanted to do something of my own. And I thought, let's open a restaurant. Pizza, sushi, Lebanese, Middle Eastern, all of these things have been done in Jaipur. So I saw a gap in the market that there's no Absolutely. true authentic Mexican cuisine. बिल्कुल सही है. कोई भी मतलब we were surprised. हम ना 10 साल से we are trying to tell people to start Mexican restaurants, and we all love Mexican. Mexican is the closest food to the Indian palate. Yes, yes. And it's nobody very was doing it, and we thought Yeah. that's surprising. Yeah.
Well, it's No plate for you. I'm fine, thank you. I would love- understand. It Guess happens. It happens. No, it's not about guess. It's about अपना खा के बोल रहे हैं. Can we have I more try questions, not please? to indulge too much in my own food. नहीं तो सब खत्म ही हो जाता है. But other than, why do you think most of the cafes in Jaipur have failed or not, you know, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जहाँ तक पहुँचना चाहिए? क्या है जो वो लोग नहीं ठीक कर रहे हैं, तक नहीं पहुँच Most पा of the restaurants don't have us. Chalo, let's go serious. It's not about us, it's about consultants. Hiring a consultant is required because most of the restaurants क्या करते हैं, पहले कोई शेफ ढूंढ लेते हैं, वो शेफ ही वो खाना बना देगा. So hiring a consultant is not only food. So consultant gives you concept, recipes, marketing, sales and everything. You know. Thank you. Thank you. Jackfruit tacos like yo. Amazing. Plus, the Yes. consultants are aware of the latest trends. आजकल जो इंस्टाग्रामेबल रेसिपीज चलती हैं, वही. सो अगर शेफ़ ने चलाया है और शेफ़ ने आपको कह दिया कि पत्ता गोभी का रंग होता है नीला, तो आप वो नीले को ही सही मानेंगे क्योंकि आपको नॉलेज है नहीं. Correct. So I think people who know food, they should only start the restaurant, not only the venture capitalists. ये पैसे हैं, हमने रेस्टोरेंट खोल दिया है, फ्रेंचाइजी ले ली. We have seen even franchisees failing. The big franchisees failing in Jaipur because they don't know कि इसमें होता क्या है. तो until the owner knows the food, they know what they are selling, it's tough. This is also jackfruit. Jackfruit guys. Yes. We are the jackfruit girls. I'll take a bite for sure. Yes, yes, Please. Please try. Dip it in this. But I want to taste this one. Then it makes 2 bites. I had 2 smaller ones. Mind blowing. Yeah, food consultant is very important. Consultants का मतलब ये नहीं होता है कि कोई टीम लेकर आएगा, आपको रेस्टोरेंट चला के दे देगा और आप चला लोगे क्यों चलेगा. Cause they are a team जिसका काम है आना, जगह चलाना, 3 महीने बाद चले जाके किसी और की जगह चलाना और आपकी जगह. So when we do our, I'm not boasting about our consultants, or we also like, we don't have a team and we believe in teaching from the scratch. And you've been to one of our favorite projects and you've seen things. That's my second home. Yes. Because when the owner is so dedicated, train him, teach him how to sell, teach him what's the recipe, teach him everything. Then the place can go for a longer run. Longer time. Else people just Because come. staff doesn't stay for long. Right. Human Staff resource is the keeps biggest thing changing. that keeps on changing. Correct. मतलब अभी कोई उनको अगर इवन 50 रुपीज़ का रेस करके दे देगा कि आपकी करंट सैलरी में अलाउड 50 रुपीज़, they'll move. Correct. There is So the person who's owning the place needs to have that passion for restaurant, the food, the service and everything. That's the only reason. When people, and second thing is people are very happy in beginning, they are giving their best shot and then the baby is abandoned as in no, अब तो ये ऑटो पे आ गया, autopilot. ऑटो मोड पे आ गया, नहीं चलेगा. तो अगर मतलब of course since we are talking about food तो सबसे पहले तो खाने से प्यार होना चाहिए, खाना बनाने से, खिलाने से, and then comes the part कि अच्छा चलो इससे अब पैसे कैसे बनाए जाए. अगर आइडिया ही सिर्फ पैसे तो अपने आप आ जाते हैं, ट्रस्ट मी. अगर योर वर्क इज गुड तो पैसा कम्स. एंड दीज डेज वी स्टॉप टेकिंग कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स. व्हेन वी स्पीक टू द क्लाइंट वी ग्रास्प कि ये खुद चलाएंगे या पैसा लगा रहे हैं. तो दैट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस. सो यो आपने तो दिल और जान लगा दी और सामने वाले वी आर काइंड ऑफ फूल्स जो वी टर्न डाउन द प्रोजेक्ट एंड वी आस्क देम कि सर आप नहीं चला आपसे पाओगे, ना हो पाएगा. आपसे नहीं हो पाएगा, डोंट वेस्ट योर मनी. Correct. मतलब आता हुआ प्रोजेक्ट किसको गंदा लगता है. हम भी क्या हम पैसे उठाएं अपने 2-3 महीने काम करें छुट्टी, ऐसा हो सकता है. बट व्हेन वी आर पुटिंग आवर हार्ट एंड सोल, सो वी वांट टू सी दैट बेबी ग्रो. या वी वांट दैट प्लेस टू डू वेल, डू अर्न. There are some cafes जहाँ पर 200 items हैं, है ना, इतने items हैं, you get confused Yes. and all. And then there are places that are very minimal items, minimum number of items which is served good. So what is your take on that? कि ज़्यादा होने चाहिए आपके मेन्यू में items या कम होने आपने खुद ही कह दिया जितना रायता संभले उतना ही फैलाओ ना. सो या ओके काइंड ऑफ मेन्यू इज फाइन बट टू एलैबोरेट इज आपको उतनी इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ेगी, वेस्टेज उतनी होगी, कॉस्ट उतनी. तो ये शेफ नहीं बताएगा आपको. हाँ. शेफ तो अपना ज्ञान देके जाएगा सिर्फ. I rarely eat jackfruit, I know. but this is wow. आई टोल्ड यू कि अच्छा होगा, मैंने खाया है. बहुत अच्छा है. इनके हैबेनारो को मैंने हरिस्सा बोल दिया थोड़ी देर पहले जब हमें डिस्कसिंग. कोई नहीं, कोई बुरा नहीं माना. मैं मान रही हूँ.
लाइक लेबनीज घुसा दिया मेक्सिकन रेस्टोरेंट में. empanadas और विदेशी गुजिया. विदेशी गुजिया एंड विच इज़ वेरी गुड. यम यम. मुझे ऐसा लगता है जिस दिन मैं कुछ अच्छा खा लेती हूँ ना, मेरा दिन इज बेस्ट. तो वही तो हो रहा है. वी आर ऑन अ स्ट्रिक्ट रिजीम दीज डेज. तो हम नाश्ता नहीं करते. लंच इज़ आर मेन मील, क्योंकि एक तो कुछ खाना चाहिए शरीर को पहला. दूसरा लंच पे कहीं ना कहीं हमें कुछ खा लेंगे, कुछ बाहर का अच्छा खा लो. द लाइफ इज सॉर्टेड. पूरा दिन मूड अच्छा रहता है फिर. I was talking about the influencer food blogger culture, जहाँ पे ये चीज़ मैंने जयपुर आके ही ऐसा देखा था कि if some नया कैफे comes up, तो ओनर कोई और है, वहाँ की इनवाइटीज के लिए somebody else is given The the PR firms. responsibility कि है ना आप इनको बुलाओ, Right. and ये आएंगे. अगेन द टॉपिक जो आपने कहा कि उस दिन तो बेस्ट खाना सर्व होता है. उस दिन तो खैर मेरा एक आध एक्सपीरियंस ऐसा है कि फर्स्ट डे पे भी बहुत बुरा खाना. हाँ हमारे भी. सबको लगता है कि सोशल मीडिया एंड दिस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वर्क्स और वर्ड Yes. ऑफ माउथ वर्क्स मोर. एवरीथिंग वर्क्स. सी इट्स अ बैलेंस. बड़ी मतलब ले मैन लैंग्वेज में बताऊँ तो आप मार्केट जा रहे हो, सामान खरीदने जा रहे हो, सब्जी मंडी गए हो, आप छाट के सामान लाते हो ना, ये चाहिए वो चाहिए वो. तो इवन व्हेन यू डू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यू नीड टू गो टू द करेक्ट पीपल. Okay, you hired a PR agency. Good. Pick out of the best ones available. They pick people, so you know. आज आप अभी बाहर जाके आवाज़ लगाओ तो इन्फ्लुएंसर चाहिए, 15 इकट्ठे हो जाएंगे जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिनको पता भी नहीं है. People who've been working for years and years, जिनको नॉलेज है, call them only. तो ये ना क्वालिटी क्वांटिटी का जो गेम है, करेक्ट. that's the game. But yes, influencer marketing really works. हमारे कितने लोग हैं जो अब जैसे अगर आज हम स्टोरी लगाते हैं, कल वो डेफिनेटली आएगा खाने. Every time he does that, 24 hours में he reaches that place कि उन्होंने जो खाया था वो खाना. क्या बात है. Yeah, so it always work. It always works, but I also think कि डिपेंड करता है कि कौन वो बता रहा है, who is the influencer. या रेगुलर मार्केटिंग इज नीडेड. मतलब ऐसा क्यों है कि इवन टाटा एंड दे ऑल शो दीज एडवर्टाइजिंग Of course. कि भाई वो दिखाना पड़ता है, वरना करना आप पड़ता लोग है. भूल जाएंगे. अगर आप सामने नहीं रहोगे जो दिखता है वो बिकता है. सिंपल सी बात है. Do you think 100% सच होता है जो फूड ब्लॉगर्स दिखाते हैं? नहीं, कई बार हमें काइंड भी होना पड़ता है. Some things we don't like but it's okay. इट्स द एफर्ट दैट गोज बिहाइंड इट. और दूसरा जैसे अब मेरे को जैकफ्रूट नहीं पसंद, आप लोग को बहुत पसंद है, तो मैं कैसे कह दूँ जैकफ्रूट बहुत बेकार है, मुझे पसंद नहीं, दैट्स माई प्रॉब्लम. तो हमने कभी भी ये लाइन यूज़ नहीं करी कि ये हमारी फेवरेट जगह है या हमें. इन आवर ओपिनियन दिस इज़ गुड, दिस इज़ बैड. तो जयपुर में आपको क्या लगता है कि कौन सा एक फूड ट्रेंड है जो बहुत ओवररेटेड है और जो बहुत अंडररेटेड है? ओवररेटेड अभी तक थॉट डाला नहीं है, पर रामेन आई शुड से सारी दुनिया पागल हो रही है कोरियन के पीछे. कोरियन खाना कोरियन कैफे टेस्टी होता है. आई हैवंट बीन टू वन एंड बिकॉज आई एम लेस एक्सपेरिमेंटल, बट येस आई लाइक यू नो व्हाट्स ओवररेटेड. या जबरदस्ती जो लोग फ्यूजन कर रहे हैं, भैया नहीं है जरूरत. दाल बाटी फॉन्डू. दाल बाटी पिज्जा, ओह गॉड. दाल मखनी पिज्जा, पाव भाजी पिज्जा. पराठा. आई थिंक ये डिस्कशन तो 5-6 साल से चल रहा है और चल ही रहा है, हाँ. पर कोई एंड नहीं फिर है भी इसका. सीख नहीं रहे लोग. सीख नहीं रहे लोग. बट या जयपुर में है, मतलब इट्स अ लवली प्लेस टू लिव इन. छोटी सी जगह है, प्यारी सी जगह है. आई एम लविंग द कॉफी कल्चर बिकॉज आई लव कॉफी. Yeah. द न्यू कॉफी शॉप्स व्हिच हैव कम अप आर लाइक वाओ. तो Give us 3 places to have best coffees. टफेटा, सेंट एस्प्रेसो. And recently we went to Nola. It was good. I didn't like the coffee over there. I just tasted coffee. I didn't order So any. you both are coffee people or you like chai also? I am allergic to chai. She loves her chai I like also. chai. You like your But chai is more of a Thank you. dad and my time kind of thing. हाँ. कि वहाँ कि उनके साथ में पीनी है और बटर टोस्ट को उसमें डुबा के खाना है. So that is our thing. बाकी बाहर मेरे को मलाई का फोबिया है. Oh. मुझे मलाई नहीं दिखनी चाहिए, तो उस वजह से मैं बाहर कहीं चाय नहीं नहीं पीती. पीती. कॉफ़ी भी मैं ब्लैक पीती हूँ, दूध का टंटा ही नहीं. हाँ, her coffee is very simple. So what are some places in Jaipur that's a very good dessert or cakes? टफेटा का पाइनएप्पल केक takes us back to बचपन वाला फ्लेवर. एक पिरामिड पेस्ट्री आती थी पहले, सुविधा बाजार. सुविधा बाजार करके एक फर्स्ट डिपार्टमेंटल स्टोर था जयपुर का. Okay. And they used to make pyramid pastry, which was marble cake basically, and it had butter cream. वो अब कहीं नहीं मिलता है जहाँ तक I think. And of course फालूदा.
at Indian Faluda shop. इंडियन तो कहीं भी खा सकते हैं फलूदा And यस then रामचंद्र की कुल्फी, पंडित की कुल्फी. जलेबी केसर की जलेबी जरूर वाओ कोई अगर जयपुर आ रहा है, वो जयपुर से बाहर वो कुछ पैक करा के ले जाना चाहता है खाने का, सारे कचौरियाँ ले जाते हैं यार यहाँ मावा से। कचौरी. कचौरिया एंड घेवर के अलावा कुछ है? फीनी. And गज्जक हाँ, गज्जक भी अभी आती है. February में I went to Bombay and we always take some souvenirs for friends. For the first time I did not take edible stuff क्योंकि मिलने का पता नहीं चल रहा था पहले. हम फीनी लेकर गए हुए हैं, हम घेवर लेकर गए हुए हैं, कचौरियाँ अपनी कॉइन वाली कचौरियाँ. So this time I wanted to take ये गज्जक वज्जक सब. मैंने कहा यार कौन खाएगा, छोड़ो ना. तो मैं इस बार गिफ्ट ले गई instead of edible stuff. इतने हार्ड ब्रोकन थे ना वो. फिर मैं ना गज्जक लाने भाई लाई क्यों नहीं फिर गज्जक, यहाँ मिलती नहीं है, हमारी पार्टी वहाँ से आती है, यहाँ से आती है. मैंने कहा यार एडिबल गिफ्ट से सही है. What is one of the international cuisine जो आपको लगता है जयपुर में आना चाहिए? Burmese. Mexican तो आ गया. Burmese. Dos amigos. Burmese. Burmese. We happen to be, we come from Burma. मतलब not हम. Our dad is Burma born and our family used to stay in Burma. वहाँ पे जब वो सारा राइट्स वगैरह हुए, that time they had to come back. मैंने पहली बार आई थिंक मैंने आपको तो बताया था कि फर्स्ट टाइम मैंने बर्मीज कुजीन ट्राई किया था एट बर्मा इन हैदराबाद. ओह गॉड. He is the only guy doing justice to Burmese food in India. या Trust me. बाकी सारे फर्जी हैं. कम टू जयपुर एज वेल. मैं बहुत पीछे पड़ी हूँ उसके, वो नहीं आ रहा. पाव जो मैंने वहाँ पाव खाया था एंड द चटनीज दैट दे सर्व, द सैलड्स, ओह माय गॉड, द सूप, द समोसा वाला सूप, Sambusa soup, yes. वाओ. मतलब कोई नहीं, मेरी किताब आ रही है, आप घर में बना लेना सब देखा. बनाने का ही तो टाइम नहीं ओह, मिलता है. point. यहाँ पर हम तो खिला- वही है. तभी तो मैं कैफेज एक्सप्लोर कर रही हूँ जयपुर के, कि इसी बहाने True. I'll get to do two of the best things, food and बातें. conversation. Yes. Nice. चलो फिर let's move on to our next segment, which is called rapid fire round. One ingredient that you can never get bored of. Tabasco. We love Tabasco. हम ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं इंडिया के टबास्को के. Really? Pineapple on pizza, yeah or nay? I'm open to try. Still contemplating. I've had, and because I like ketchup with everything sometimes, Yeah. so I'm okay with that. See, तंदूरी पाइनएप्पल भी तो खाते हैं. It's okay. So एक ऐसा food combination that people judge but you guys love. Ketchup and bhujia, simple. I love it. I love it too. I love you. दही भुजिया. Dahi bhujia I've not tried, or maybe I've tried, but ketchup and bhujia is wow. और उसको फिर ब्रेड में लगा के Bread में खाओ. लगा. ओहो. Oh. मतलब लिटरली जैसे आई टोल्ड यू कि वी डोंट ईट ब्रेकफास्ट दीस डेज. Yeah. प्रोटीन शेक होता है, पर किसी दिन अगर अंतरात्मा जंक मांगती है तो जो 2 चम्मच भुजिया पे थोड़ा सा केचप डाल हाँ, हाँ. उससे हो जाता है. हो जाता जाता है, है. या फिर 2 गोलगप्पे मिल जाते मेरे हैं को रात नाश्ते में को मिलेंगे ना. आधी रात को जब भूख लगती है, कुछ नहीं मिल रहा होता है, I am person who will always have bhujia at home, always have ketchup at home and always have bread at home. Simply this, bread लो, ketchup लगाओ, भुजिया डालो, sandwich तैयार. If your personality was a dish, what would it be? मार्गरीटा. अब अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो I'll be LIT. हाँ. One Jaipur food place that you can defend for life. आंटी की पाव भाजी. Sweet tooth or spicy cravings? बोथ. If it's sweet, it has to be hardcore sweet. ये अच्छा अपना है ना डाइट वाला स्वीट नहीं. कम sweet नहीं हाँ, होना चाहिए. वरना तो स्पाइसी. Cooking for someone or someone cooking for you? Someone cooking. ना मेरे को नहीं She's करना got cooking. someone cooking. She's got someone cooking. But when she cooks for me, it's like wow. भाई 10:2 का रेशो होगा चाहे. नहीं उससे भी कम होना चाहिए. I was being kind. 9.5 and 0.5. I'm sorry. पिंक सॉस पास्ता कई लोगों को समझ नहीं आता. सो पिंक सॉस पास्ता. इट्स अ कॉम्प्रोमाइज. जिसको टमेटो नहीं खाना है और वाइट खाना है तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज है दोनों को मिला के. यहाँ पर है ना वो कॉम्प्रोमाइज. हाँ. I love red sauce pasta. I they used to love love white. नहीं, now तो I enjoy spicy She's food. evolved. I'll tell you a very funny incident from one of our restaurant project. वहाँ पे बोले लोग आते हैं कहते हैं पिंक सॉस पास्ता पिंक ही नहीं है, क्या करें इसको. So we said कि next time you should answer. They want this kind of pink, beetroot pink. बीटरूट पिंक. हाँ, तो हमने कहा एक काम करना, आप उनको अगली बार जवाब देना कि पिंक सॉस पास्ता उतना ही पिंक है जितना हमारी पिंक सिटी पिंक है. Sorted. The pink sauce pasta is basically not pink in color. Hmm. Of course not. It's tomato plus cream. Cream. हाँ, जयपुर के cafes more aesthetic और more tasty. Aesthetic Now- ज़्यादा है कि taste ज़्यादा Now है? they are aesthetic and tasty.
वरना earlier it was only one thing. Either it can be हाँ, aesthetic or either. it can be tasty. But अब तो everyone is working hard. Like we are liking the places in दिनों. सार्डो ब्रेड और रेगुलर ब्रेड दोनों Sardo. का अपना अपना है नहीं यार दोनों का अपने अपने मजे हैं सार्डो है रेगुलर व्हेन यू वांट अ मुंबई मसाला सैंडविच यू कैन नॉट हैव इट इन अ सार्डो बट व्हेन यू वांट अ नाइस पेस्टो और ब्रुश्केटा यू नहीं, when I am more of a avocado toast kind of Oh, person. yeah. So sardo. सार्डो she actually is दाल बाटी चूरमा और रामेन ऑन अ रेनी डे दाल बाटी चूरमा एनी डे हम राजस्थानी हम दाल बाटी ना ना और रामेन से अच्छी मैगी बनी है हमारी Come on, last 3 questions first. Good food can save bad ambience. Yes or no? yes Good ambience can save bad food. No. Yes or never Biggest red flag in a cafe menu. कैफे मेन्यू Unhygienic. मेन्यू गंदे होते हैं फटे हुए होते हैं साइड से तो आपका मेन्यू इज़ योर वेलकम टू अ गेस्ट और दूसरा जो आपकी वेलकम गेस्ट होते हैं होस्ट होते हैं उनका सड़ा मुंह गंदी टेबल्स मतलब इट्स अ बिग You don't feel welcoming. Yeah, you have to. You should. Cloud kitchens, future or fact? नो इट इज़ अ फ्यूचर कॉज सी कितनी जगह लेंगे लेट्स टॉक अबाउट जयपुर इज़ अ मिड सेगमेंट मार्केट यहाँ पे आप बहुत हाई प्राइस डिशेज नहीं रख सकते एसी का खर्चा जगह का खर्चा रेंट का खर्चा ये खर्चा तो क्लाउड किचन इफ़ यू आर सप्लाइंग गुड फूड इट्स ओके इट्स अ फैक्ट One thing that you think every Jaipur cafe is copying nowadays. क्या सब जगह ऐसी एवरीथिंग द सेम मेन्यू इज कॉपिंग पेस्टिंग यहाँ तक कि स्टाफ भी आज इधर है फिर इधर होगा फिर इधर होगा फिर Like- इधर होगा जयपुर वालों का ना दाल मखनी और पनीर चिली पनीर के बिना होता नहीं है. मल्टी कुजीन से ऊपर तो उठना ही नहीं चाहते Nice. One message that you would like to give all the people who want to come up with the cafes, who build a new cafe, चलाना चाहते हैं, चला नहीं प्लीज पा रहे. गेट रेडी टू बी हैंड्स ऑन रोम have वॉज to- नॉट बिल्ट इन अ yeah. डे आज कैफे चालू होते ही 10 इंस्टाग्राम पोस्ट डाल देने से कुछ फिरंगियों को बुलाने से आपकी जगह नहीं चल पड़ेगी और सिर्फ फूड ब्लॉगर्स won't be there to run your place. You have to pay attention. You have to pay attention to all the detail and the food, especially. बी हैंड्स ऑन Alright, yay! We've had a great conversation with the Caldron sisters. and Long- yummy food and Love the yummy food. Love the food. I'm so the glad that churros, these two the were talking wine. and I was enjoying the food. so no complaints And we were looking for moments to eat food. So, बताओ मुझे कैसा रहा आपका experience in this segment is called मेरी तारीफ करो. ओह, तारीफ करूं क्या इसकी उफ, जिसने खाना बनाया I agree with that. no thank you so much Yamini for Yamini देखा see yummy and Damini makes you Yamini okay so thank you so much for calling us and especially calling us here Yeah. and not any other regular cafe thank you for introducing this place and हमारे लिए ना ये sisters table ही थी जिसको हमने होस्ट नहीं किया तो आज हम चपड़ करते थे No. had a good time So like I said कि अपने बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है. तो हम अब बहुत बिजी थे हमारे बारे में बात करने में. And she is the elder one. yes I am So yes, thank you so much for being here with us and this is episode 3 of Keep Munching with Damini and आगे भी हम जयपुर के और ऐसे कैफेज एक्सप्लोर करते रहेंगे. वो कैफे कल्चर खाना जो है ना मतलब खाना और कॉन्वर्सेशन से दो चीज़ें जो मुझे लगता है सबसे बेस्ट मेमोरीज आपको देती है. तो जयपुर में और भी कौन से ऐसे कैफेज हैं जगह है जो आपको लगता है कि जिसके बारे में ज़्यादा बात होनी चाहिए. प्लीज टेल अस इन द कमेंट्स बिलो एंड बिफोर वी रैप अप जैसे हर बड़े शो में गिफ्ट हैम्पर्स होते हैं. oh my god We also have gift hampers. we love Santa So this is also a kind of idea to promote Jaipur में females जो घर से काम कर रही हैं, women entrepreneurs from Jaipur और running small businesses, कोई मसाले बनाता है, कोई gifts बनाता है. So अभी हमारी जो गिफ्टिंग पार्टनर है, she is Usha ji and she runs a small business called Wrapped to Fly. She makes this really good, Oh, so Rajasthani handmade So items. cute. So she has sent this Thank you. for you both. Thank you, Usha ji. Thank you so This much. is very pretty. and useful. These elephants are so Very cute. pretty. Correct. Yeah. In this one, we would like to give to Anand ne. बुला देना उनको. So जयपुर के और ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी बातें आप चाहते हो कि मैं आप तक पहुंचाऊं? ऐसी कौन सी जगह है? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर you think कि यार इस जगह खाना try करना चाहिए? Please tell us in the comments and like, share, subscribe to Arjun Damani. Please बोलो यार. You have to follow her if you want, you know. Updates of the latest places. And food, of course. How can you forget food?
The Damini's here. What do you think about how different you think I am? आपने मुझे रेडियो पे भी सुना है और ऐसे वीडियोस में नहीं भी- हम नहीं, सेम you are same. हम सेम नजरों से देखते हैं सेम कानों से सुनते हैं तो तुम सेम लगती हो हमें पता है ये बंदी कौन है क्या है सो वी कैन रिलेट But I still remember the first time we met at our sister's table. You came late, and you were kind of really हैसल hassled and scared or stressed. And then यार, you were like, see? आजा बैठो तो खाओ. कॉन्फिडेंस वहाँ यहाँ क्या हो गया क्योंकि मैं I was running late Yeah. and I was very new to Jaipur. I didn't knew the places, the lanes. क्या था मुझे लगा था मैं मिस ना कर दूं because this was something I was looking forward to it. और फिर मैं शो रैप अप करके आ Do we रही थी scare जल्दी- people? जल्दी। Do you think people get scared when they meet us? With you? From you? No, I was not scared. You are not? No, but some. Shit, we some, need to work I on need it. to try harder. We need to work on it. Some people. I was a little scared, you know, when I. See? Like, not now, not then. Recently, बताती हूँ। When the things were just हम प्लान कर रहे थे सारी चीजें कुछ पोस्टपोन होती जा रही थी या कैंसिल होती जाती मेरे एंड पे आपके एंड पे मुझे ऐसा लगता है ऐसा ना हो यार कि मैं ये करना चाहती हूँ पर ये हो नहीं पाया मैं कैसे बोलूँ कि कल करूँ नहीं वो सलमान खान वाला issue देखा होता मुझे है। क्या क्या झेलना पड़ता है, कितना डर डर के जीती हूँ मैं. लग रही ना डरी हुई चेहरे से प्लीज अंजनय thank you so much Love the for food. being with Everything us. was amazing. And we are so full I can't tell you. Thank you so much, Anjanay, for the great food, the great place, and bringing Mexico on a plate in Jaipur. So this is our gifting partner, It was Usha my ji, pleasure. Wrap to Fly, and she Oh. has sent this little gift Thank you for so you. much. Very kind of you. So yes, that's all. Please like, share, and subscribe to Arjun Damini and keep watching, keep munching.